بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے اردو کی بک سٹارٹ کی ہوئی تھی جماعت ہفتم کی پنجاب کیریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور۔ لاسٹ لیکچر تک ہم نے حمد اور نعت اس کی تشریحات اور اس کی مکمل مشق کی تھی، اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہوا ہے۔ اب ہم اس کا لیسن نمبر 3 سٹارٹ کرتے ہیں، دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق۔ اس کے سب سے پہلے ہم خاص الفاظ ریڈ کر لیتے ہیں۔ استقبال، استقبال کا معنی ہے خوش آمدید۔ دوسرا خاص الفاظ ہے باسی، باسی کا معنی ہے پرانا۔ اگلا ہے مرغن، مرغن کا معنی ہے تیل یا گھی میں تلی ہوئی غذائیں۔ اگلا ہے قابل رشک، اس کا معنی ہے فخر کے قابل۔ اگلا خاص الفاظ ہے زرنگار، اس کا معنی ہے سجا ہوا۔ اگلا خاص الفاظ ہے دم نکلنا، اس کا معنی ہے جان نکلنا۔ اگلا ہے تمدن، اس کا معنی ہے زندگی گزارنا۔ اگلا ہے فراق انجمن، اس کا معنی ہے محفل سے جدائی۔ اب ہم اس لیسن کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ احمد 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے، وہ اپنے والدین کے ساتھ لاہور میں رہتا ہے۔ اس کی ننیال گاؤں میں ہے۔ ننیال کا معنی ہے ماں کی طرف سے رشتہ دار۔ گرمیوں کی تعطیلات میں، تعطیلات کا معنی ہے چھٹیاں۔ احمد، اس کا بھائی بلال اور ننھی بہن عائشہ اپنے والدین کے ساتھ گاؤں آئے۔ وہ گاؤں کے قریبی قصبے میں بس سے اترے۔ قریبی کا مطلب ہے نزدیکی۔ احمد کے ماموں جان نے ان کا استقبال کیا۔ استقبال کا مطلب ہے خوش آمدید کہنا، ویلکم کہنا۔ وہ انہیں تانگے پر بٹھا کر گاؤں لے آئے۔ سڑک کے دونوں جانب دھان کے ہرے بھرے کھیت تھے۔ وہ گاؤں کی ہری بھری فضا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ فضا، فضا کا معنی ہے زمین کی وسعت۔ کچھ دیر بعد تانگا گاؤں کی حدود میں داخل ہوا۔ حدود مین حد بندی۔ وہ تانگے سے اترے تو پورا محلہ ان کو گاؤں میں خوش آمدید کہنے کے لیے موجود تھا۔ احمد اور بلال اپنے ماموں زاد بھائی حسن کے ساتھ کھیتوں کی طرف چلے گئے۔ دھان کی فصل کو پانی دینے کے لیے ٹیوب ویل چل رہا تھا۔ وہ ٹیوب ویل سے نکلنے والے پانی میں نہائے۔ اب وہ تازہ دم ہو چکے تھے۔ تازہ دم کا معنی ہے تھکن اتارنا۔ اتنے میں مغرب کا وقت ہو گیا۔ اذان کی آواز سن کر انہوں نے مسجد کا رخ کیا۔ من مسجد کی طرف چلے گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر، فارغ کا مطلب ہے فری، نماز سے فری ہو کر گھر پہنچے تو ممانی جان دسترخوان پر کھانا چن رہی تھی۔ کھانا چن رہی تھی مین کھانا لگا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں سب دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ کھانا کھانے کے دوران میں بات چیت بھی ہوتی رہی۔ بات چیت، گفتگو۔ آئیے ہم بھی ان کی گفتگو سنتے ہیں۔ احمد، ممانی جان، ابھی تو شام ہوئی ہے اور آپ نے رات کا کھانا بھی لگا دیا ہے۔ آپ لوگ رات کو کھانا اتنی جلدی کھا لیتے ہیں؟ ممانی جان: احمد میاں، ہم دیہاتی لوگ ہیں۔ دیہاتی لوگ، دیہات میں رہنے والے، گاؤں میں رہنے والے۔ ہمارے ہاں رات کو جلد سونے اور صبح سویرے اٹھنے کا رواج ہے۔ رواج کا مطلب ہے طور طریقہ۔ شہروں میں تو لوگ رات گئے تک جاگتے رہتے ہیں۔ مین شہروں میں تو لوگ رات دیر تک جاگتے رہتے ہیں۔ وہ رات کا کھانا بھی دیر سے کھاتے ہیں۔ حسن: میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی جاگنا صحت کے لیے مفید ہے۔ مفید کا مطلب ہے فائدہ مند۔ آگے نانا جان: شاید اسی لیے گاؤں کے رہنے والے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں۔ صحت مند، توانا، تر و تازہ۔ احمد: نانا جان، میں نے سنا ہے کہ شہر کے لوگوں کے مقابلے میں گاؤں والوں کی صحت بہتر ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نانا جان: بھائی دیہاتی لوگ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، کھیتی باڑی کے فصلیں اگاتے ہیں، سارا دن کام میں لگے رہتے ہیں، سارا دن، پورا دن۔ دیہاتی خواتین بھی سارا دن کام میں مصروف رہتی ہیں۔ وہ گھر کا سارا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں۔ مرغیوں، گائیں، بھینس اور دیگر پالتو جانوروں کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ دیکھ بھال کا مطلب ہے خیال رکھتی ہیں۔ فصلوں کی کٹائی، بوائی کے مین فصلوں کو کاٹنا اور فصلوں کو بونا اور انہیں سمیٹنے میں بھی
मर्दों का हाथ बटाती हैं। हाथ बटाना मदद करना, कि फसलों को काटना, फसलों को बोना और फसलों को समेटने में वो मर्दों की मदद करती हैं, जबकि शहरों में रहने वालों को इस कदर मुशक्क़त का काम नहीं करना पड़ता। मुशक्क़त का मतलब है मेहनत। यही वजह है कि देहात में रहने वालों की सेहत बेहतर होती है और वो अमूमन दुबले पतले होते हैं। नानी जान, गांव में रहने वालों की उम्दा सेहत, उम्दा मीन बेहतर सेहत का एक और सबब मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल भी है। सबब मीन वजह। देहाती लोग सादा खुराक खाते हैं, जबकि शहरों में रहने वाले मुर्गन ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मुर्गन ग़िज़ाओं तेल या घी में तली हुई ग़िज़ाएँ। आगे अहमद के अब्बा जान, वाकई देहातों की सेहत काबिल रश्क होती है, काबिल रश्क, फ़ख्र के काबिल। इसकी वजह खालस और ताज़ा खुराक भी है। खालस का मतलब है जिसमें कोई मिलावट ना हो। यहाँ के रहने वालों को ताज़ा सब्जियाँ, फल और खालस ग़िज़ाएँ मुयस्सर मीन दस्तयाब हैं। शहरों में ये चीज़ें गायब होती जा रही हैं। गायब मीन ख़त्म होती जा रही हैं। हसन, मैं जब लाहौर गया था तो मैंने वहाँ बहुत से लोगों को तंग तंग घरों में रहते देखा था। उन घरों के सेहन तो थे ही नहीं। अहमद के अब्बा जान, बात यह है कि गांव में लोगों के पास घर बनाने के लिए जगह का कोई मसला नहीं। मसला मीन परेशानी नहीं। यही वजह है कि देहात में ज़्यादातर घर खुले खुले होते हैं। इसके बरअक्स का मीन उल्ट। इसके उल्ट शहरों में जगह की कमी है। इस वजह से बहुत से लोग छोटे छोटे मकानों में रहने पर मजबूर हैं। देहात में ज़्यादातर घर एक मंजिला हैं, जबकि शहरों में कई कई मंजिला इमारत हैं। इन इमारतों में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। बलाल, मामू जान, मेरे अब्बू जान कॉलेज में पढ़ाने जाते हैं। ताया अब्बू एक दफ्तर में मुलाजमत करते हैं। मुलाजमत का मतलब है नौकरी। ताया अब्बू एक दफ्तर में नौकरी करते हैं। चचा जान एक कारखाने में काम करते हैं। आप लोग क्या काम करते हैं? मामू जान, देहात के ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी का मतलब है फसलें उगाना। कुछ लोग मुलाजमत भी करते हैं, मगर इनकी तादाद बहुत कम है। हसन, आप खेती बाड़ी का काम कैसे करते हैं? मामू जान, पहले खेती बाड़ी का सारा काम बैलों से लिया जाता था। बैलों की मदद से खेतों में हल चलाते, कुओं से पानी निकालते, गंदम की घाई करते थे, मगर अब इनकी जगह मशीनें और आलात आ गए हैं। आलात का मतलब है औजार। अब ट्रैक्टर और इनसे चलने वाली ज़री मशीनरी ज़राअत के लिए जौन सी मशीनरी इस्तेमाल होती है, ने खेत बाड़ी के काम को बहुत आसान और तेज़ कर दिया है। इस तरह अब कुएं बहुत कम नज़र आते हैं, क्योंकि इसकी जगह ट्यूबवेल ने ले ली है। बिलाल, मैंने तो सुना था देहात के कच्चे मकान और कच्ची सड़कें होती हैं, वहाँ बिजली और फ़ोन भी नहीं होता, मगर यहाँ तो ऐसा नहीं है। नाना जान, बिलाल बेटा, आज से कुछ अरसा पहले देहात ऐसे ही थे जैसे तुम बता रहे हो। अब देहात बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। बदल गए का मतलब है तब्दील हो गए हैं। कच्चे मकानात की जगह लोगों ने पुख्ता मकानात बना लिए हैं। पुख्ता का मतलब पक्के मकानात बना लिए हैं। देहात में सड़कों का जाल भी फैला दिया गया है। बहुत से देहात में बिजली पहुंचा दी गई है। मोबाइल फ़ोन तो अब हर गांव में नज़र आता है। ममानी जान, मैं जब लाहौर गई थी, सब्ज़ा देखने को तरस गई थी। हर तरफ मकानात, कारोबारी मराकज़, दुकानें, कारखाने, सड़कें और उन पर दौड़ने वाली गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। सच पूछे तो मेरा दम ही निकलने लगा था। दम निकलना, जान निकलना। इधर हमारे गांव से बाहर निकलो तो जहां तक नज़र जाती है हरे भरे लहलहाते हुए खेत ही खेत नज़र आते हैं। नानी जान, मैं भी शहर जाने से बहुत घबराती हूँ। घबराती मीन डरती हूँ। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखकर मेरा भी दिल घबराने लगता है। इनके शोर से मेरे तो सर में दर्द शुरू हो जाता है। धुआं फ़ज़ा को इस कदर आलूदा कर देता है, आलूदा मीन गंदा कर देता है, कि सांस लेना
दो बार हो जाता है। दो बार का मतलब मुश्किल हो जाता है। मैं शहर के रहने वालों को दाद देती हूँ। दाद देना, तारीफ करना। भाई बड़ा हौसला है इन लोगों का जो इस माहौल में रह रहे हैं। अहमद के अब्बा जान, असल में शहरों की आबादी में बेतहाशा इजाफा हुआ है। बेतहाशा, बहुत ज़्यादा। पहले देहात में 75% लोग रहते थे। देहात से शहरों की तरफ नकल मकानी के बढ़ते हुए रुझान की वजह से अब 70% से भी कम लोग देहात में रह रहे हैं। रुझान का मतलब है झुकाव, तवज्जो। नकल मकानी, इसका मतलब है एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जा बसना। जब किसी जगह लोग ज़्यादा हो तो गाड़ियाँ और शोर भी ज़्यादा होगा। ये उन्होंने तस्वीर बनाई हुई है गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी लाहौर। आगे है हसन, फूफो जान, लोग देहात से शहरों में क्यों जाते हैं? अहमद के अब्बा जान, देहात में कारोबार के मौके कम होते हैं। लोग रोज़गार की तलाश में शहरों का रुख करते हैं। रोज़गार, रोज़ी कमाना। इसके अलावा शहरों के मुकाबले में देहात में तालीम और सेहत की सहूलतें भी कम हैं। बहुत से तालब इलम इल्म की तलब रखने वाले तालीम हासिल करने की गर्ज से शहर के स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में दाखिला ले लेते हैं। इस तरह बेहतर इलाज मुआवजे के लिए भी लोग शहरों में जाते हैं। मुआवजे का मतलब है इलाज करवाने के लिए लोग शहरों में जाते हैं। इन सब चीज़ों से शहरों की आबादी बढ़ती चली जा रही है। हसन, हमारा गांव ज़्यादा बड़ा नहीं, हर शख्स दूसरे को जानता है। शहर तो बहुत बड़ा होता है, वहाँ तो सबको जानना बहुत मुश्किल होता होगा। अहमद की अम्मी जान, बेटा शहर तो इंसानों के समंदर है, उलझे हुए, मसरूफ़ हैं। बाज़ औक़ात तो लोग अपने हमसाये तक से बेखबर होते हैं। बेखबर मीन जान पहचान ना रखना। हसन, अच्छा फूफो जान, ये तो बड़ी अजीब बात है। पता है पिछले साल हमारी भैंस बीमार हो गई थी। पूरा गांव इसके मुतल्लिक पूछने हमारे घर आया था। नाना जान, भाई देहात का अपना रहन सहन है। रहन सहन, माशरत, और शहरों का अपना। देहात के अपने फ़ायदे हैं और शहरों के अपने। देहात और शहर दोनों तरक्की करेंगे तो हमारा प्यारा वतन तरक्की करेगा। हुकूमत अगर देहात में तालीम और सेहत की बेहतर सहूलियात मुहैया कर दे मतलब पहुंचा दे। इसी तरह देहात में कारखाने लगा दिए जाएं तो कोई आदमी गांव छोड़कर शहर का रुख ना करे। अहमद के अब्बा जान, मैं आपको एहसान दानिश की एक नज़म के आखिरी दो शेर सुनाता हूँ। इस नज़म में उन्होंने देहात और इसके रहने वाले मेहनती इंसानों की बहुत तारीफ की है। वारे देहात के सादा तमद्दुन की बहार, सादगी में भी है क्या क्या तेरा दामुन ज़रनिगार। दिल ये कहता है फ़िराक़े अंजुमन सहने लगूं, शहर की रंगीनियाँ छोड़ूं यही रहने लगूं। अब इसके आगे देहात और शहर में फ़र्क का खुलासा है। अहमद अपने वालिदैन के साथ छुट्टियां गुजारने अपने ननियाली गांव गया। वो गांव की हरी भरी फ़िज़ा को देखकर बहुत खुश हुआ। इसने अपने मामूज़ाद भाई से लेकर खेतों की सैर की और मगरिब की नमाज पढ़कर घर आ गया। घर में खाना तैयार था। अहमद इतनी जल्दी रात का खाना खाने पर हैरान था, मगर ममानी जान ने उसे बताया कि गांव में लोग रात का खाना जल्दी खा लेते हैं, क्योंकि गांव में लोग रात को जल्दी सोते और सुबह जल्दी उठते हैं। इसीलिए वो शहरियों की निस्बत ज़्यादा सेहतमंद होते हैं। शहरों में लोग मुर्गन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से मोटे हो जाते हैं। देहात में चीज़ें खालिस होती हैं। शहरों में मकान तंग तंग, जबकि गांव में खुले खुले होते हैं। गांव के ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं। बिजली आ जाने की वजह से अब देहात भी खूब तरक्की कर रहे हैं। शहरों में धुआं फ़ज़ा को आलूदा कर देता है, जबकि गांव की फ़ज़ा साफ़ सुथरी होती है। पहले 75% लोग देहातों में रहते थे, लेकिन अब नकल मकानी की वजह से इनकी तादाद 70% हुई है। शहरों में ज़्यादा सहूलतों की वजह से लोग शहरों का रुख कर रहे हैं। देहात और शहरों का रहन सहन अलग है। अगर देहात और शहर दोनों तरक्की करेंगे तो मुल्क खुशहाल होगा।
اب اس کے آگے اس کی مشق ہے، اس کی مشق انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ وہاں کی زندگی بہت تیز ہے، لوگ اپنے اپنے کام دھندوں میں بری طرح الجھے ہوئے ہیں۔ کام دھندوں کے جو کام کرتے ہیں